Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve mental maths chapter 10, simple and compound interest. Now the question number 1 is, calculate the SI on 10,000 at 20% for 5 years. P is given, 10,000 rate is 20% and time is 5 years. The SI P or T upon 100. P यानी प्रिंसिपल 10,000 और रेट into time upon 100. 20 से 20 finish. 5 2 10, 100 यह हो गया और 20 ये किया 10,000. SI क्या होगा 10,000. Question number 2. Sorry. At what SI rate percent will 1200 rupees amount to 1320 in 2 years? Principal P is given 1200. A 1320 and time is 2 year. Find out SI rate. SI rate we have to find out. Principal is given, amount is given, so SI is equal to A minus P. 13, 1200, 21 is SI. Now rate is equal to SI is equal to P or T upon 100. SI is 120. P principal 1200. Rate we have to find out. Time is 2 years upon 100. 20 finish. R is equal to 12 और 24 इधर आ जाएगा ठीक है. 12 से 12 1 जा 2 5 जा यानी 5%. Question number 3 is, in what time will 64,000 amount to 1,12,000 at 25% SI per annum? What time? Okay, P is given. P is 64,000. A is 1,12,000 and time we have to find out. Rate is 25%. Now SI is equal to A minus P. A is equal to 1,12,000 minus P 64,000 equal to 30. 12 में से 4 गया 8. 0 10 में से 6 गया 4. SI amount. After that SI is equal to P or T upon 100.
SI is given. Principal is equal to 64,000 into R 25. Time we have to find out 100. टू जीरो फिनिश टी को निकालना है तो शेष इसके नीचे आ जाएगा 48,064 10 यहाँ पर आएगा ही एंड 25 10 से 10 फिनिश 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 1 जा 4 4 2 जा 8 20 again 12 100 25 1 जा 25 25 4 जा 100 8 जा 16 3 48 16 1 जा 16 16 3 जा 48 यानी टाइम इज इक्वल टू 3 years. Question number 4. Find the compound interest on 10,000 for 2 years at 20% per annum. When the interest is compounded annually, P is given, rate is given. Compound interest P is 10,000 time 2 years and rate is 20%. Then amount equal to P into 1 plus R upon 100 whole power T. $10,001 plus 20 upon 100 whole power 2. 21 जा 20 25 जा इसको एक बार और कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. 10,000 5 1 जा 5 और 1 6 6 upon 5 whole power 2. Now फाइव से काटते हैं. 5 2 जा 10 3 0 अगेन 5 1 जा 5 5 4 जा 20 20 400 6 6 जा 36 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो ऐसा ही आ गया 24 This is the answer. Amount. This is the amount. और हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P. A इक्वल टू 14400 और प्रिंसिपल इज 10,000. तो यह हो गया 440. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The value of a car depreciate at the rate of 20% per annum.
If the present value of the car is 2,50,000, what will be its value after 3 years? To depreciate rate rate 20% एंड कार की वैल्यू अगर देखा जाए पी कार वैल्यू पी इक्वल टू 2,50,000 टाइम इज 3 years। निकालना क्या हमें है, what will be its value after 3 years। इसकी जो है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट पूछ रहा है। ओके, पी इंटू 1 डिप्रेशिएट हो रहा है तो माइनस R/100 होल पावर टी। ठीक है, 2,50,000 इंटू 1 माइनस डिप्रेशिएट 20% होल पावर 3। 21 जा 20, 25 जा 2,50,000, 5 1 जा 5 और 1 निकल गया यानी 4/5 होल पावर 3। 2,50,000 इंटू 4/5 4/5 लिख सकते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 2 3 4 0 अगेन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 0 2000 हुआ। 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह हमारा आंसर आएगा 64 का 2 गुना होगा 128 और 30 और दिस इज द आंसर, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 3 years। ये तो मेंटल मैथ का क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आते हैं हम इसका मिक्स बैग सॉल्व करते हैं। मिक्स बैग चैप्टर 10 मिक्स बैग। क्वेश्चन नंबर 1, ए सम ऑफ मनी invested at simple interest amount to 8,800 in 2 years and 9,200 in 3 years. Find the sum and rate of interest per annum। तो 2 years का अमाउंट ये है, 3 years का अमाउंट ये है। तो सेकेंड ईयर अमाउंट 2 years amount is equal to 8,800 and 3 years amount is equal to 9,200। 2 years का 3 years का, तो SI फॉर 1 फर्स्ट ईयर क्या होगा? सो SI फॉर फर्स्ट ईयर यानी 3 और 2 में माइनस करेंगे तो फर्स्ट ईयर यानी 9,200, अमाउंट को 8,800 माइनस करेंगे
दो जीरो 12 में से 4 गए, तो 400 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जो है 2 ईयर्स का अमाउंट दिया है, तो 2 और 3 अमाउंट को माइनस कर दिए तो 1 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स यानी 2 इंटू 1 ईयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 800 हो गया। अब प्रिंसिपल निकल सकता है, 2 ईयर्स का जो है प्रिंसिपल ए माइनस बी होता है, सॉरी एस आई। तो अमाउंट हमारा जो है 2 ईयर्स का है 8800, और सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का कितना है 800, ये हमारी 8000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। इसने क्या बोला है? फाइंड सम, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू हो गया हमारा एस आई इंटू 100 होल पावर प्रिंसिपल एंड टाइम। एस आई गिवन 800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 8000 हमारा प्रिंसिपल आया, इंटू टाइम कितने साल के लिए था? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 20 से 20 ये फिनिश हो गया, 10 से 10 ये फिनिश हो गया, 8 से 8 फिनिश हो गया, 2 5 जब, यानी रेट जो है 5% आ रहा है। रेट हो गया 5%, प्रिंसिपल हो गया 8000। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन व्हाट टाइम विल 15,000 अमाउंट टू 17,400 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टाइम पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल एक दे दिया है, अमाउंट भी दे दिया है। प्रिंसिपल इज 15,000, पहला जो दिया प्रिंसिपल है, और जो अमाउंट बना ए 17,400। ठीक है, रेट 8%, टाइम हमें निकालना है। प्रिंसिपल इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, रेट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह साई इक्वल टू, ये तो हमको मालूम है ए माइनस पी होता है, तो ए इज गिवन यानी 17,400 माइनस 15,000, ये हो जाएगा आपका 30 और सॉरी हो गया 2,400 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम टाइम निकालेंगे, तो टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 होल पावर पी आर। एस आई हमने निकाल लिया 2,400 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 15,000 ऑलरेडी मालूम है, रेट इक्वल टू 8%। तो 30,123 फिनिश हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी टाइम इज 2 ईयर्स।
ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।